Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this class I will be discussing on laws of motion. This is first class for your class 11 NEET and JEE. Okay. So, basically I will be talking in English and also Hindi and mix up language and I will be talking about. Okay. So let's discuss with the history and background of something है ना. जैसे किसी भी पढ़ने के पहले आपको पहले इसका हिस्ट्री जानना जरूरी है. ओके. So let's with force, momentum, and what is force, momentum. Sometimes you haven't seen ना किसी ने ट्रक और कार उन्होंने ब्रेक दबाया, बट ब्रेक दबाने के बाद बहुत टाइम तक वो कार आपका धीरे धीरे स्टॉप हुआ. So when you switch off your fan, है ना, तो switch off कर दिया, but fan is still moving after some time it is stopping. When you traveling in a bus, है ना, so when just you throw a ball, है ना, and then ball is also it is coming on your hand. Simultaneously when you throw in a ball is also going with you. Otherwise you are in motion and ball is just here, so ball will be just backside. Okay. So ball is when you throwing, it also moving with your bus or car. Okay. And these types of motion and its consequences. So Einstein force and momentum, this concept that time, Newton explained is that a quantity of motion. That time he is not force, momentum. He is written in his Principia in 1687. The great books in his different three laws of motion. है ना, you have already studied that in your class 10. है ना. Okay. So now the great question is coming: is external force is required to keep a body uniform motion? External force required, yeah, not. So that time this question is arising 380 BC before Christ, Aristotle. So he is trying to answer these questions. Is external force is required. How much time before? So after that Galileo has answered this question in a different way. So if there is no external force, then if a body is in motion, it will go for infinity. If you put a kick on this ball, it will go to infinity. And he has shown that just two blocks, and here is also two blocks. So this block, and he has put a ball, and this is very frictionless thing. After some time it is going upward, and then it will be stopped. But if it is frictionless, so that time Galileo has commented that if it is frictionless, then infinitely it will oscillate. Matlab it is going here and here, there. Yeah, if you kick a ball, and that thing might be find in when your spaceship is going to your high vacuum. There is a high vacuum in space. There is no frictional force, very little, very small frictional force. So that time if you eject your rocket, that rocket principle I will be talking little bit later. So if you eject some mass, then rocket will be going. So if this is your rocket, this is your rocket. Okay. So this is your rejecting your mass, मतलब जस्ट आपका मैटर का जो है आपका वो उसमें जो है फ्यूल जो है बर्निंग हो रहे हैं. सो यहाँ से गैस निकल रहे हैं एंड इट विल गिव किक टू दिस रॉकेट. सो वन किक it will go continuous if you are reaching in high vacuum or interstellar space. When if you get a kick,
then it will continuously moving in same speed, because there is no external force to stop this. Okay, so that's why this types of concept and this types of it is coming and it is developing, है ना. So न्यूटन ने उन्होंने प्रिंसिपिया उनका किताब जो है उन्होंने ये सब लिखे हैं. So what is Newton's first law? Just tell. So if there is no external force, if there is no external force, then rest body, then the body at rest will remain at rest, and body in motion will be in uniform motion, will move in यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो किसी भी बॉडी अगर ये रेस्ट में रह रहे हैं, so it will rest only if there is no external force, and if body in uniform motion, then if there is no external force, just like your frictional force and everything, then it will go in uniform motion, it will go to infinity. So this is the outcome. So from this is your first law of Newton. So what you are seeing here? So there is a laws of inertia. Okay. So laws of inertia, है inertia. So inertia means मतलब वो मूव करना ही नहीं चाहता, या जो स्टेट इट इज नॉट चेंजिंग इट्स स्टेट. So state of in motion and state of in uniform motion, or state of rest and state of uniform motion is just same. So though there is no external force, so जो है ना जैसे आप दिस आर रिलेटिव मोशंस एवरीथिंग, है ना. सो आप किसी भी मोशन आप देखोगे सो एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में है. ओके, सो इनर्शिया मीन्स जस्ट बचपन का एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है ना. दिस इज योर ग्लास and here it is a postcard, and you drop a coin here, it is place a coin here. So if you just put a kick just with your finger, then what you will see, the postcard will be just out of this glass, but the coin will be dropped here. So it was in rest, है ना. So it will trying to remain in rest only, that's why it will go here, है ना. जैसे आप बस में मूव कर रहे हैं ना, so आप you have just when the driver is start his bus, then you are rest at rest, then what will happen, your body part, है ना. So your bus is moving means your lower portion is just moving, but your head and upper body part is trying to remain in rest only. So that's why you will be just kicked backside. So later it will be explained as a आपका जो है non inertial frame of reference and जो है centrifugal force. Later I will be discussing. Okay, so and there is if something is required to change its state, either it is rest or uniform motion, rest or uniform motion. Okay, so something is required to change its rest state or uniform motion state. So something, what something, that something is called concept of force. Concept of force. Okay, so Newton's first law is giving the concept of inertia and concept of force. Now the definition of force will be coming in Newton's second law. Okay, so Newton's second law. So what it is telling, that you already you have read in your class 10 classes. Okay,
So concept of force. So now just to quantify what is the force, मतलब how much force it is acting on a body. Okay. So what is the second law? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. Okay. So and displacement takes place in the direction of force act. So रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो फोर्स इज जो है प्रोपोर्शनल टू जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम v2 माइनस v1 by divided by time. So force not only depends on change of momentum but also how fast it is changing, है ना. सो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम पे वो एक्टिंग हो रहे हैं. एंड if your force is acting here, so moment its change in displacement will be along the direction of force. This is your displacement. Okay, so just give an example. When you are playing cricket, okay, so in that time, so you are catching some ball, na. So at that time what you are doing? So when this ball is coming, so you just take your hand just from your side, है ना. Why? आप ऐसा क्यों करते हो? बॉल को ऐसे कैसे आपने ये किए पकड़े फिर उसको खींच लिए. If you are putting your hand just till here, so ball is acting on your hand and your hand will be just फट सकता है हाथ, है ना. जो है हाथ में बहुत सारे आपको इट मे बी डैमेज्ड, है ना. So that time you are what you are doing? You just टेकिंग द टाइम. सो फोर्स जो है आपका थोड़ा सा टाइम जो है टाइम थोड़ा सा आपने बढ़ा दिए. व्हाट इज इंडिकेट? फोर्स विल बी एक्टिंग जस्ट लोअर टू योर इन दैट सिचुएशन व्हेन यू आर जस्ट रिमेनिंग इट स्टिल रखोगे बट उससे ऐसा यदि आप अगर खींच लोगे तो उसमें क्या है फोर्स आपका टाइम के थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं. तो उस टाइम से डिवाइड होगा तो आपका फोर्स कम लगेगा. सो दैट्स व्हाई दैट विल नॉट हिट योर हैंड, है ना. इट विल नॉट हर्ट योर हैंड, है ना. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो फोर्स इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर चेंज ऑफ मोमेंटम बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम. ओके, so that is the so just your force equal to F जो है ना, V2 is the final velocity and V1 is the initial velocity and the test time you maybe if you know the differential equation. So in m mass जो है m dv dt है ना, is velocity है ना. So rate of change of velocity with time. So if you depends on mass, जो जितना mass ज्यादा होगा उसका force उतना ही ज्यादा होगा, है ना. Now, so if you in this component you can write also the m जो है आपका dvx acceleration, it is acceleration ना. So you can write it as ax है ना. Similarly fy equal to m ay and a force component is this is if your it is a vector quantity na. So this is fz equal to m az. This is acceleration. dv dt is your acceleration. A equal to dv dt है ना. So now I will be discussing on the impulsive force. Impulsive force, what it is? Impulse and impulsive force. Sometimes a question is asking what is impulse and what is impulsive force. A large force acting for a short time, just like you're catching a cricket ball on, or if you thrown a ball to a wall and it is coming back. So here the time is very negligible, है ना. बहुत कम टाइम में हिट करके इधर आया गया. सो ए लार्ज फोर्स, जैसे आपने बहुत जोर से एक दीवार की तरफ आपने जो कैम्ब्रिज बॉल को आपने फेंक दिया है ना. सो इधर टच करके इधर आ गया. सो इन दैट केस हाउ दैट केस ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फॉर ए शॉर्ट टाइम, इट इज शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंजेस मोमेंटम चेंज हो रहे. सो लेट्स से इसका बॉल का मैंने ये किया जो है आपका, ये मान लीजिए 200 ग्राम का एक बॉल है ना.
200 ग्राम का बॉल इधर है और आपको जो है इधर ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये इधर जा रहा था। अब ये शॉर्ट टाइम पे इधर एक्ट होके इधर है, सो आप इसका चेंज इन मोमेंटम कितना है, सो जस्ट कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है आपका कितना होगा, सो इम्पल्स इन दैट केस, इम्पल्स मीन्स जो है आपका फोर्स जो है इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, कितना फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम, दिस इज सो एम डीवी dt, एम डीवी dt था ना, एम डीवी dt था आपका फोर्स है ना, ये dt होगा तो एम डीवी मीन्स एम v2 माइनस v1, ये वाई टाइम इक्वल टू टी था ना, सो फोर्स इनटू टाइम, so force and t graph, so if it is your force, so this is the your area, this area is called impulse, है ना। शॉर्ट फोर्स को बोलता है impulsive force, but impulse is change in momentum, change in momentum. So in that case how much change in momentum, कितना होगा, so if your final velocity इधर आप, this is your positive x direction, so final is 10 into 2, 10 जो है ये मीटर और दिस इज your 200 kg है ना, 200 ग्राम जो है ना, so दिस कितना होगा आपका माइनस जो है 0.2 इंटू 10 माइनस ऑफ इनिशियल कितना वेलोसिटी है आपका 0.2 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल टू -4 न्यूटन, -4 न्यूटन जो है आपका शॉर्ट टाइम पे ये हुआ, सो बहुत जो टाइम आपका बहुत ज्यादा कम है ना, तो इसकी इस पोजीशन में आपका जो है आपको जो रेट ऑफ इम्पल्स होगा 4 न्यूटन इंटू जो है ये सेकेंड, 4 न्यूटन इंटू सेकेंड दैट टाइम है ना, so Newton second is your impulse and Newton is 1 Newton in SI unit, it is 1 Newton, the 1 force का unit है ना, 1 Newton 1 foot poundal जो है ना, foot poundal, and this is your dyne in CGS, FPS and this is your SI, ये तो आपको पता है ना, 1 Newton equal to how much dyne, 5 है ना, ठीक है। सो दिस इज द इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। अब इस टाइप से क्वेश्चन अब एक एग्जाम में आता है आपका, जो है आपको इम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, कैसे, सो इट बॉल इज हिटिंग ऑन ए वॉल विथ एन एंगल समथिंग है ना थीटा, ए बॉल इट इज हिटिंग ए वॉल विथ एन एंगल ऑफ थीटा है ना, so what is how much it is impulse, so if it is mass and it is coming with velocity v है ना, इस theta angle पे हो रहे, so initial how much and final is how much, if it is the angle theta and this is also theta, so it will be minus twice mv जो है cos theta है ना, and here it is in x direction कितना होगा आपका, ये this is your v, so v cos theta, so माइनस v cos थीटा माइनस अब जो है एम v cos थीटा, और x along y direction, this is your along x direction, along y direction it is एम v sin थीटा, एंड ये क्रॉस हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा along y direction पे, इसका कंपोनेंट, एक का कंपोनेंट इधर है ना और इसका कंपोनेंट इधर, सो इट विल बी जस्ट नलिफाई है ना, सो along y direction जो है आपका कोई इम्पल्स नहीं रहेगा, बट अलोंग एक्स डायरेक्शन देयर विल बी इम्पल्स ऑफ माइनस ट्वाइस एम की cos थीटा है ना, न्यूटन इनटू सेकंड, दिस यूनिट न्यूटन सेकंड, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो व्हाट इट इज टेलिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, मतलब मैं आपको एक थप्पड़ मारूं तो आप भी मेरे को थप्पड़ मारोगे, ऐसा है ना। So let's say just
डिफरेंट एग्जाम्पल यू हैव सीन इन योर ना, जैसे आप मतलब नाव में जा रहे हैं ना, यहाँ पे नाव पे आप चढ़ के जा रहे हैं इधर, या जो है यहाँ पे आपको नाव से, जैसे ये बंदा जो है ये जैसे ये पैर लगा के उधर गया ना, इस तरफ गया, सो दैट टाइम दिस विल बी योर बोट विल बी रिक्वाइल बैक। ओके, क्योंकि ये अपने जो है अपने नाव के ऊपर धक्का दिया, मतलब नाव के ऊपर धक्का दिया, तो नाव ने आपको उधर पहुंच गया है ना, और ये धक्का दिया तो इधर रिपेल हुआ और आपको आप भी उधर पहुंच गए। सो दिस फोर्स, समथिंग इज एक्शन एंड समथिंग इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। सो ऐसा नहीं है आप एक्शन करने के बाद आपको रिएक्शन मिलेगा। दिस इज जो है दिस इज जो है साइमल्टेनियस फोर्स है ना, साइमल्टेनियस फोर्स। साइमल्टेनियस फोर्स मीन्स एक्शन इज फास्ट एंड रिएक्शन इज लेटर, ऐसा नहीं है, दिस फोर्स इज एक्टिंग साइमल्टेनियसली है ना। तो किसी भी सिस्टम में जो है आपका ये, अगर ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जैसे यू आर, सो व्हाट इट इज हैपनिंग, this is a, if you're in isolated system, this, if you call it an isolated system, if your action is here है ना, and action is here and reaction is here, so net force is zero, so it is a simultaneous force and cancel each other है ना, cancel each other। ऐसा नहीं है कि ये वाला फोर्स और दोनों का वेक्टर सम है जीरो, दिस इज नॉट जस्ट वेक्टर सम, इट इज एन इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल फोर्स। जैसे आपका जो है बहुत सारे आपको एक सिस्टम ऑफ गैस पार्टिकल है ना, सो गैस पार्टिकल में एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन अपने पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद है ना। सो टू मॉलिक्यूल्स आर हिटिंग हियर, इट इज आल्सो हिटिंग, सो नेट जो फोर्स जो ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सो इट इज इंटरनली है ना, इंटरनल फोर्स एंड इट इज इन पेयर, इट इज एक्टिंग इन पेयर है ना, दो पार्टिकल इधर, दो पार्टिकल ये भी ये एक्टिंग हो रहे, ये भी इधर दो पार्टिकल ये एक्टिंग इसके, बट नेट मोमेंटम, जो नेट चेंज इन मोमेंटम या नेट फोर्स इज जीरो। So this is the isolated property of isolated system. Okay, so action and reaction, this force are same. How can you prove this? So let's have a small experiment है ना, कैसे आप प्रूव करोगे एक्शन रिएक्शन सेम होता है। So this is your, this is your spring है ना, and if your, and it is also a one box, this is also a spring and it is attached to a wall and you are putting into a hook, so you are here है ना। so आप इसको खींच रहे हो, आप यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग वेट जो है ना, आपका एक वेट टाइप का जैसे रहता है ना, आपको एक सामान आपने रख दिया और इसमें स्प्रिंग के ऊपर जो है उसके ऊपर रख दिया और आप वहां पे उसका यू आर टेकिंग इट्स वेट। ओके, सो if you connected this hook here and its hook is here है ना। okay, so आप देखोगे if you are pulling it here है ना, आप देखोगे जो जितना फोर्स यहाँ पे एक नीडल है, ये इंडिकेटर है ना, कितना वेट वो दिखाता है ना। जैसे ये सिंपल आपने काफी देखे होंगे अपने है ना, तो यहाँ पे अपने पकड़ के रखते हैं और इधर आपका जो है वेट इसके साथ जो है वेट लगाते हैं। सो हाउ मच वेट यू आर कैलकुलेटिंग इन द मार्केट, नॉट ओनली आपका जो है आपका जो है सामान देने का जो आपने देखे है ना। सो इस टाइप में आप जो है आप इसका जो हुक, दोनों का हुक एक साथ हमने जोड़ दिए। आप you are pulling it here है ना। सो आप that simultaneously you are interesting fact you are seeing, जो यहाँ इसका नीडल जहाँ पे भी, इसका भी नीडल वही है, मतलब what it is, you are pulling its वॉल है ना, पुलिंग इट्स हियर, मतलब आप दीवार को खींचने को कोशिश कर रहे हो, वॉल इज ऑल्सो पुलिंग यू है ना। सो अब इट इज रिजिड वॉल है ना, इट इज इफ यू आर पुलिंग हियर एंड वॉल इज ऑल्सो पुलिंग यू, सो दैट्स व्हाई, सो इफ यू आर पुलिंग हियर मीन्स दिस वन है ना, आप यहाँ पे खींच रहे हो है ना। सो ये जो है इसका रीडिंग जो दिखा रहा है, जितना फोर्स से आप खींच रहे हो दिखा रहे, अब वॉल भी आपको खींच रहे, ये वाला रीडिंग आप यहाँ देख रहे हो।
So two reading are same, so action and reactions are action and reaction are same and simultaneously acting, and this internal force cancel each other in pair, है ना. So this is the basic fundamental of action and reaction. Okay, so now when I am discussing about this isolated system and the Newton's second law and third law, its consequences give rise to another beautiful thing. What it is? Not only beautiful action and reaction, what it is? Conservation of momentum. Conservation of momentum means in isolated system, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम, मतलब एक आपका जैसे हमने गैस मॉलिक्यूल का बताया था ना, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल दूसरे को हीट कर रहे है ना. इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम बिफोर हीटिंग या कोलिशन, सो एंड आफ्टर कोलिशन इट इज द मोमेंटम इज same, momentum is conserved. So let's have a two ball, it is going m1, it is with velocity u1, and another ball is m2, it is u2, and it is somewhere here it is heating, है ना, ज़्यादा हीट हो रहे. So after that its momentum जो है m1, ये जो है इसका v1, and it is going जो है m1 and it is m2, it is v2. Okay, so from conservation of momentum before collision, how much? m1 u1 plus m2 u2 equal to, so momentum of one particle m1 u1 m2 u2 equal to जो है आपका m1 v1 plus m2 v2. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ जो रिलेशनशिप जो है अपने आप ये करेंगे उसको, है ना. अब उससे जो है आपका एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत सारे क्वेश्चंस आता है. मतलब एक गोला था, फट गया, एक दूसरे डायरेक्शन पे गया एंगल में, सो इन दैट टाइम जो है आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रॉब्लम, जैसे आपने मान लीजिए 2 डायमेंशन में कुछ इफेक्ट हुआ, जैसे मतलब एक गोला था, एक गोला फिर यहाँ से फट, इट इज आफ्टर एक्सप्लोजन इट इज गोइंग 2 पोर्शन, one is it is mass, it is m1 and this is m2, when m equal to m1 plus m2. In that case what you will do? Conservation of momentum. Okay, so momentum जो है आपका in x direction, in along y direction. So ये कितना एंगल पे ये जा रहे हैं ये आपको पता, अगर दिया हुआ तो आपको पता चलेगा, है ना. सो along x डायरेक्शन इसका कितना, इस डायरेक्शन पे आपका कितना मोमेंटम था. सो m मान लीजिए v इक्वल टू जो है इसका m1 u1 इसका जो इसका मान लीजिए कुछ वेलोसिटी होगा u1, ये cos थीटा प्लस जो है m2 u2 cos थीटा, एंड इसका मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम कितना था पहले, इसका वर्टिकल मोमेंटम कितना है, कुछ भी नहीं था क्योंकि ये अलोंग एक्स डायरेक्शन जा रहा था. सो m1 u1 sin थीटा प्लस जो है ये थीटा कुछ दूसरा एंगल होगा, मान लीजिए ये थीटा का जगह में फाई या समथिंग अगर कुछ एंगल दिया हो तो आपको पता चलेगा ना, प्लस m2 u2 sin थीटा, ये थीटा ऐसा नहीं भी हो सकता है, थीटा 1 या थीटा 2 मान लीजिए, है ना, ये थीटा 1 ये थीटा 2, दिस इज इक्वल टू 0 है, ये एंगल आपको दिया रहेगा. सो इस तरीके से आप मोमेंट कंजर्वेशन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना. तो ये मान लीजिए ये आपका थीटा 1 है ना, कंफ्यूजन जो रखिए थीटा 2. ओके, सो अब एक जैसे हमने हमारी जो है बॉर्डर में हमारी जो है सैनिक जो लोग जो है हमने
जो रहते हैं ना दादा लोग, सो वो लोग अपना अपना देश के लिए सेवा दे रहे हैं ना, अपनी रक्षा कर रहे हैं। सो उनका कंधे पे गान रहता है, तो उन्होंने जैसे फायर करते हैं ना, सो फायर करने का टाइम वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको कंधे में इस पोजिशन पे रखते हैं, सो उसका जो रिकॉयल उनका कंधे पे उसको हार्ड ना करे, तो उस तरीके से उनको ट्रेनिंग रहता है। मतलब बंदूक पकड़ना भी इतना आसान नहीं है ना, अगर उसको ये करने का रिकॉयल क्यों होता है, तो वही आप बताएंगे क्यों रिकॉयल होता है ना। जैसे ये आपका गान है ना, ये गान मान लीजिए, ये गान यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो है दादा इधर गान को पकड़ के है ना। सो इफ योर बुलेट ये इसके साथ लोडेड है, अब उन्होंने यहाँ पे ट्रिगर दबाया, तो बुलेट कुछ जो है एम यू वेलोसिटी से जा रहे है ना। अब ये वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो इसका जो है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। तो पहले इसका मोमेंटम कितना था बुलेट और गन का, ये भी जीरो था, ये भी जीरो, चुपचाप उसके साथ लोड होकर बैठा था। अब आफ्टर दैट क्या हुआ, ये एम यू हुआ प्लस इसका गान का वैल्यू जो है आपका एम समथिंग वी, ये मान लीजिए वी, ये वी वैल्यू ये इधर जा रहा है, तो आपको गान पीछे की तरफ आएगा। सो दिस इज योर वी। ओके, अच्छा, सो नेक्स्ट इसका क्या होगा, आपका वेलोसिटी है ना। सो ये जो है आपका ये रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, माइनस एम यू ओवर एम। गान का रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा क्योंकि बुलेट का एम ये छोटा है ना, ये इसका गान का मास तो ज्यादा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा, है ना। सो इस तरीके से आप रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम पहले जीरो था, बाद में आपका ये वेलोसिटी से बुलेट निकला एंड गान विल बी रिकॉइल। सो दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी, ओके। सो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है आप कर सकते हो, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, एवरीथिंग, है ना। सो इस तरीके से जो है आपका जैसे एक्शन रिएक्शन का अभी ये किया है ना, जैसे एक्शन रिएक्शन का जैसे हमने ऊपर से जैसे मान लीजिए एप्पल गिरा है ना, ये आपका न्यूटन का जो है पेड़ है ना, इधर एप्पल का पेड़ है और है इधर एप्पल आपका गिरा। सो ये तो आपका ये यहाँ से गिर रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सो अर्थ का जो है वो भी तो उधर जाना चाहिए, है ना। तो ये अगर ये इतना ये हो रहा है, मतलब एप्पल इसके तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एफ इक्वल टू एम जो बाय जो है आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आप देखोगे बाद में, है ना। ये आपने पिछले क्लास में भी तो पढ़े हैं, क्लास 11 में, ये क्लास 10 पे, है ना। सो ये जो फोर्स दोनों एक्ट कर रहे हैं, एप्पल भी अर्थ को एक्टिंग कर रहे हैं, बट अर्थ भी एप्पल का, बट एप्पल इधर भाग रहे, अर्थ नहीं जा रहे, क्यों इन दैट टाइम, क्योंकि एक्शन रिएक्शन सेम, तो ऐसा होना चाहिए ना, एप्पल को भी अर्थ को भी एप्पल की तरफ जाना चाहिए था, क्यों जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें जो होगा एप्पल का जो है मास है ना, फोर्स जो है, फोर्स तो सेम है, बट एप्पल का मास तो बहुत कम है, तो उसका एक्सीलरेशन जो है ना, एप्पल का मास मान लीजिए एप्पल ए, और इसका जो एक्सीलरेशन एम ए जो है, ये अगर आपका इन दोनों का जो है एक्शन और रिएक्शन में, इसमें क्या होगा, अर्थ का मास एम ए और अर्थ का एक्सीलरेशन ए ई। सो अर्थ का मास जो है बहुत ज्यादा एप्पल के हिसाब से, है ना, बट फिर क्या होगा, ए ई इक्वल टू एम एप्पल का मास, एक्सीलरेशन एप्पल का, और ये मास ऑफ अर्थ। सो ये कितना होगा, टेंस टू जीरो, बहुत कम। तो इसका अर्थ का एक्सीलरेशन नेग्लेक्टेड, जस्ट गोइंग टू बी जीरो, इसलिए अर्थ मूव नहीं करता है, एप्पल इधर आ जाता है, ठीक है ना। ये सब जो है एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, इनका बारे में इन टाइम पे उन्होंने ये सब डेवलपमेंट किए हैं। तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली अपने इंडिया में भी ये सब ग्रोथ हो रहे थे, है ना। तो इंडिया में भी क्या हो रहा था, अपने जो 1150 के टाइम पे जो है इंस्टेंटेनियस
फोर्स, इंस्टेंटेनियस मोशन, ये जो है भास्कर ने उस टाइम पे दिए थे, तो उसका भी जिक्र है अपने इसमें, है ना। सो अपने वहाँ पे जो है साइंस का चर्चा बहुत प्राचीन काल से, बहुत दिन से हो रहे थे, है ना। सो somehow this is not somehow we are not familiar with that, but अपने अपने इंडिया बहुत पहले उसमें है ना, बहुत से साइंस में बहुत आगे थे। ठीक है, व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन, जो है हम जो है अब हम दूसरा जो है अपना रॉकेट मोशंस एंड एवरीथिंग वी विल बी सीइंग, कैसे रॉकेट मूव करता है, उसका मास, मतलब जो है उसका जो है आपका मास का जो है ये होता है, ब्रांडिंग होता है। सो किस तरीके से रॉकेट मोशन में यू डी एम डी टी इक्वल टू आपका जो है वेलोसिटी जाता है ना, ये सब देखेंगे। तो टिपिकली जो है आपका रॉकेट का जो है ना आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। जैसे पहले जो है, पहले वाला जो ये इसमें है ना, ये आपका पेलोड, जैसे सैटेलाइट और जो आपको आसमान में भेजना है उसको एकदम आगे में रखते हैं, पेलोड और समथिंग, है ना। नेक्स्ट आपका जो है लिक्विड फ्यूल रहता है इसमें, है ना। और जो नेक्स्ट जो ऑक्सीजन, ओजोन, H2O2, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहता है इधर। और ये वाला जो है इन दोनों को इधर पंप करके, ये कॉम्बसन चैम्बर, जहाँ पे आपका जो है आपका कॉम्बसन होता है, दहन होती है ना। तो ये आपका जो लिक्विड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इधर जैसे कंप्रेसर यूज करके हाई कॉम्बसन रेट में उसको ये होता है। सो कॉम्बसन होने के बाद उसका जो है आपका CO2 एंड अदर जो है, जो बहुत सारे जो गैस जो है बहुत जोर से निकलते हैं, ये आपका ये जो गैस निकलते हैं, जैसे ही गैस निकलते हैं ना, सो इट विल बी, ये आपका इन्होंने ये फोर्स इधर देता है। सो हाउ मच इट्स फोर्स, सो इफ यूर कॉम्बसन रेट इट इज जो है DMDT, ये जिसे कॉम्बसन जो है रेट है ना, एंड ये जो गैस निकल रहा है उसका वेलोसिटी ऑफ ejected gas, if it is U, so net force will be how much, U dm dt, so force equal to U dm dt, है ना। और आपने क्या देखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका यू डीवी एम डीवी dt भी था, और जो है ना मोमेंटम चेंज होना है, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो ये भी आपका फोर्स है ना। सो इधर एम जो यू डीएम डी टी, अब रॉकेट कब उठेगा, जब दिस फोर्स इज मिनिमम जो है इसका वेट का जो इक्वल होगा। सो इफ रॉकेट मास इज एम, है ना, एम जी इक्वल टू, इस रॉकेट जो मास है ये आपका एम, सो एम जी इसका जो है आपका वेट है ना, सो इक्वल टू यू डीएम डी टी। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन, है ना। सो ये इसका मास मिनिमम जो है, सो मिनिमम गैस का फ्यूल रेट कितना होना चाहिए फॉर दैट रॉकेट विल गो अपवर्ड, मतलब इट्स मास विल बी इक्विवेलेंट टू योर DMDT, बट DMDT इज काफी लार्ज, है ना, सो दैट रॉकेट विल बी वेरी मच एट हाई स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। इतना सेकेंड में वो इतना जो है भागता है, तब आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये करके आप एस्केप कर सकते हैं, इसका वेलोसिटी दैट विल बी, आई विल टॉकिंग इन ग्रेविटेशन लेक्चर्स, ओके। सो यू डीएम dt, so it is basically u dm dt is very much higher than mg, है ना, it is very much greater than 0, that's why rocket is moving upward. So this is the basic principle, and इसका ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। ये वाला इक्वेशन आप अच्छे से देख लीजिए, एम इसका रॉकेट का मास, इसका वेट, एंड यू इज द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस, एंड डीएम dt इज द कॉम्बसन रेट, जो कितना मास पर सेकेंड में ये हो रहा है। सो ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन, इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा इस तरीके से, है ना, ठीक है। और आपका जो है ये बेसिकली यू डीएम dt माइनस एम जी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपका रॉकेट इतना हाई एक्सेलरेशन लेके निकलता है ना, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू।